سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں 24 گھنٹے کے اندر 2790 چالان، کالے شیشے، سگنل توڑنا، بغیر ہیلمٹ یا دوران سفر موبائل فون کا استعمال، قانون کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں چھپی۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر سب سے زیادہ 1607 چالان، بغیر ہیلمٹ 743، تیز رفتاری پر 59 ڈرائیورز کو جرمانے، لال سگنل توڑنے پر 150، موبائل پر بات کرنے پر 73 چالان۔ قوانین پر عمل کریں، کیمرے کی آنکھ 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں معراج اختر کی رپورٹ میں۔ کیمرے کی آنکھ سے کوئی نہیں بچ پائے گا، یہاں کی خلاف ورزی وہاں چالان حاضر۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ای چالان کا سلسلہ جاری۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر میں قائم مانیٹرنگ روم سے شہر کی اہم شاہراہوں پر رواں دواں ٹریفک کی کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران قوانین کی خلاف ورزیوں پر 2790 سے زائد چالان جاری کیے گئے۔ 12 گھنٹوں کے دوران 1300 سے زائد جرمانے۔ جی دیکھیں جی، گزشتہ روز 2790 چلان ہم کر چکے ہیں اور اس وقت اپڈیٹ ہے 1300 سے زائد ہم چلان ابھی تک کر چکے ہیں، جس میں مین وائلیشن ابھی تک سیٹ بیلٹ ریکارڈڈ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا موٹر سائیکل پر۔ یہ جو مین وائلیشنز ہیں جو شہری ابھی تک اس پر اویئرنیس نہیں ہوئی ان کو، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کم سے کم ریشو ہو جائے۔ اس سسٹم کی کامیابی اس وقت ہوگی جب یہ ریشو کم سے کم ہو جائے گا، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کامیاب ہو گیا۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ نہ پہننے پر کیے گئے۔ دوسرے نمبر پر اوور اسپیڈنگ، رونگ وے اور سگنل کی خلاف ورزی پر ٹکٹ جاری ہوئے۔ یہ شکایت کا سلسلہ اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس پرنٹ پہنچتا ہے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ دیا گیا ہے، جب آپ اپنے موبائل سے اس کو اسکین کریں گے تو آپ کے پاس کلر پرنٹ کھل جائے گا آپ کے موبائل میں، اور آپ زوم کر کے اس میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ دوران سفر سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال کریں، قوانین کی پاسداری کریں تاکہ حادثات اور جرمانے دونوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین کاشف علی کے سراج اختر، سٹی 21۔ کراچی میں ٹریفک شکایات کے لیے 11 سہولت سینٹرز قائم، ٹریفک قوانین کی 50 خلاف ورزیوں کا جرمانہ 5000 روپے مقرر، 14 روز میں ادائیگی پر 50% رعایت، عدم ادائیگی پر جرمانہ مرحلہ وار بڑھتا جائے گا۔ نئے ٹریفک قوانین اور جرمانوں کا سندھ بھر میں یکساں نفاذ۔ آئی جی سندھ کی زیر صدارت عمل درآمد سے متعلق دوسرا جائزہ اجلاس، غلام نبی میمن کا قوانین سے متعلق آگاہی مہم تیز کرنے کا حکم۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ نئے ٹریفک قوانین اور جرمانوں کا نفاذ صوبہ بھر میں یکساں ہے۔ نئے ٹریفک قوانین کی 50 خلاف ورزیوں کا جرمانہ 5000 روپے تک ہے، خلاف ورزیوں کا رعایتی جرمانہ 2 سے 2500 روپے ہے۔ آگاہی تنبیہ کے باوجود جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں جرمانہ بالترتیب بڑھتا جائے گا۔ اس وقت 59 خلاف ورزیوں کو مانیٹر اور جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کی اجلاس کو بریفنگ، کہا کہ صرف 9 انتہائی مہلک اور سنگین خلاف ورزیوں پر 5000 سے زائد جرمانہ مختص ہے۔ سوشل میڈیا پر بھاری گاڑیوں کے جرمانے کو موٹر سائیکل اور کار کے جرمانوں سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ صرف کراچی میں ٹریفک جرمانوں سے متعلق شکایات کے لیے 11 مقامات پر سہولت سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ سہولت سینٹرز میں ایس پی، سی پی ایل سی نمائندہ اور ڈی ایس پی ٹریفک یا متعلقہ افسران شکایات کا ازالہ کریں گے۔ جرمانے سے متعلق شکایات کے ازالے کا وقت جرمانے کی مدت میں شمار نہیں ہوگا۔ کیمرے لگے تو شہری بھی چوکنا ہو گئے۔ ای چالان کے نفاذ کے بعد شہریوں کا ٹریفک قوانین پر عمل درآمد۔ ایس او کینٹ شفقت حسین کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے شہریوں کو بار بار کہنا پڑتا تھا، اب جیسے ہی سگنل بند ہوتا ہے شہری رک جاتے ہیں۔ آج تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے، اس پہ پبلک پہ بڑا اثر پڑا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسٹاپ لائن کی پابندی کر رہے ہیں، اور اکا دکا گاڑیاں آگے نکلتی ہیں تو ان کا باقاعدہ کیمرے کی مدد میں چلان ہو رہا ہے۔ شہر میں ای چالان پر بلدیہ عثمہ کراچی کا یو ٹرن۔ بلدیہ عثمہ نے ای چالان سے متعلق منظور قرارداد کو انسانی غلطی قرار دے دیا۔ ترجمان بلدیہ عثمہ کراچی کا کہنا ہے کہ ای چالان سے متعلق قرارداد کونسل اجلاس میں منظور نہیں ہوئی تھی۔ انتظامی غلطی کے باعث دستاویز پر غلطی سے دستخط ہو گئے اور اسے منظور شدہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ترجمان بلدیہ عظمہ کراچی دانیال علی شان کا کہنا ہے کہ ای چالان سے متعلق قرارداد تاحال منظور نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ آئندہ کونسل اجلاس میں باضابطہ طور پر پیش کیا جائے گا۔ ایک چالان سے متعلق منظور ہوئی قرارداد سے متعلق چلنے والی خبروں میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ شہر کی دیواروں کو صاف رکھنے کمشنر ڈپٹی ڈائریکٹر سٹی وارڈنز سائم عمران کہتے ہیں کہ وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کروائے جائیں گے۔
किसी भी शख्स को शहर की खूबसूरती तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहर की खूबसूरती को तबाह करने वाले अब सीधा जेल जाएंगे। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन्स की जानिब से वॉल चॉकिंग के खात्मे के लिए स्पेशल स्क्वाड कायम कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन साइम इमरान कहते हैं कि शहर से वॉल चॉकिंग का खात्मा करने के साथ साथ सिटी वार्डन्स भी तैनात किए जा रहे हैं। मेयर कराची की हिदायत पर मरकजी शहराहों की दीवारों से वॉल चॉकिंग खत्म की जा रही है। 8 दिन से बिजली बंद, शाह लतीफ के रहायशियों का सबर जवाब दे गया। मेन नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। कराची ठट्टा कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस और इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। 8 दिन से बिजली बंद है, शाह लतीफ के रहायशियों का सबर जवाब दे गया। मेन नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। कराची ठट्टा कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस और इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, एक हफ्ते में 167 रोड साइड होटल्स और चाय खाने बंद। दोबारा खोलने पर मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा, भारी जुर्माना भी किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने जायजा इजलास में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, एक हफ्ते में 167 रोड साइड होटल्स और चाय खाने बंद। दोबारा खोलने पर मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा, भारी जुर्माना भी किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने जायजा इजलास में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद इमरान उल हक की निगरानी में इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन, 5वें रोज़ भी तजावुज़ात को गिराने का सिलसिला जारी। हैवी मशीनरी के जरिए पुख्ता और नीम पुख्ता तजावुज़ात हटाकर रोड क्लियर कर दिया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते रहे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव सस्टेनेबल इस वजह से नहीं हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्ड इन्हांसमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट, कुछ पोजेशन इस तरह से बने थे। तो आज जो हमारी जो एक्टिविटी है स्पेशली उसके ऊपर एक्सकेवेटर और जो हमने शॉवेल लेके आए हैं, तो उन चीज़ों को भी हम और ये बाजार हम क्लियर करें। शहरियों के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। फेसलेस चालान सिस्टम तो मुतारिफ करा दिया गया, मगर ट्रैफिक जाम का अजाब बदस्तूर बरकरार है। खास तौर पे कोरंगी क्रॉसिंग पर रोजाना घंटों की ट्रैफिक शहरियों के लिए एक नया इम्तिहान बन चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरंगी क्रॉसिंग, शारा फैसल और नर्सरी जैसे मसरूफ इलाकों में ट्रैफिक का दबाव मामूल बन गया। हुकूमत ने फेसलेस चालान सिस्टम तो शुरू कर दिया, मगर फेस ट्रैफिक कंट्रोल का हाल अब भी जू का तू है। शहरियों का कहना है कि कोरंगी क्रॉसिंग पर रोज यही हाल होता है। दफातर पहुंचने में रोज ताखीर हो जाती है, लोग रोंग वे आते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ खड़ी देखती रहती है। कि कितना जाम है ये चौक, उसकी वजह से ये मोड़ जो उन्होंने बंद कर रखा है, इसकी वजह से बहुत जाम होता है। ये अब इधर कट नहीं है, लोग वन में आते हैं तो लाजमी बात है कि जाम ही होगा। ऐसे ही रहता है, डेली जाम ही रहता है, मुकम्मल जाम रहता है। सुबह हम लोग काम के लिए निकलते हैं, डेली आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी तंगी का सामना करना पड़ता है हमें। उसके बाद डेली हम इस तरह ख्वार होकर जाते हैं, काम पर लेट होकर जाते हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार न सिर्फ कम तादाद में है, बल्कि कई मकामात पर मौजूद ही नहीं, जबकि इंतजामिया की तवज्जो चालान के निज़ाम पर ज्यादा और ट्रैफिक की रवानी पर कम देती है। टिम्बर मार्केट के ताजिर सड़कों की खस्ताहाली से तंग आ गए। ऑल सिटी चादर इत्तेहाद ने कल एहतजाज का ऐलान कर दिया। सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी का कहना है कि टैक्स दहिंदगान के कारोबारी इलाके खंडर बन चुके हैं, जबकि इंतजामिया की गफलत ने ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। टिम्बर मार्केट की गलियां उखड़ी हुई, कारोबार मुतासिर और इंतजामिया खामोश। टैक्स देने वाले ताजिर इंसाफ मांगने पर मजबूर। कराची की टिम्बर मार्केट की सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गईं। बारिश के बाद से मरम्मती काम ना होने पर ताजिर फट पड़े। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी का कहना है कि टैक्सेस देने के बावजूद इलाके की सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। मुतादिद शिकायत के बावजूद टाउन नाजिम की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सूरत हाल कराची के मेहनत कश ताजिरों के साथ संगीन नाइंसाफी है। इन्होंने जो तबाही मचाई हुई है शहर के अंदर, एक तो सीवरेज का पानी, आप ये देखें, ये पीछे सीवरेज का पानी खड़ा है और इस वक्त हमारा जो है ये मजदूर यहाँ पे पानी छिड़क रहा है, पानी छिड़क के हम अपना गुजारा कर रहे हैं। एक तो टैक्स दें, भत्ता दें, हर किस्म के रिश्वत दें, इसके बाद ये हाल इस शहर का।
शर्जील गोपलानी ने दो टोक कहा कि अब हम एहतजाज करेंगे ताकि हुक्काम को हालात की संगीनी का एहसास हो और फौरी मरम्मत ना हुई तो एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया जाएगा। ताजिर बिरादरी का कहना है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो अपने कारोबार बंद करके शहर भर में एहतजाज करेंगे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ काविश में सिटी 21। रात में लकड़ी की नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा जंगलात और जंगली हयात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी। रात के औकात में लकड़ी की नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा जंगलात और जंगली हयात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी। कराची में सिंध से उभरते मौक़े। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो जारी। समंदर के उभरते मौक़े हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का एक्सपो का दौरा। कहा PIMC 2025 कराची का नया चेहरा, सरमायाकारी का नया मरकज़। एक्सपो पाकिस्तान की बहरी मईशत के लिए संगे मील साबित होगा। मैरीटाइम एक्सपो तरक्की, सरमायाकारी और रोजगार की नई लहर लाएगा। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दुनिया पाकिस्तान के बहरी मौक़े से जुड़ने को तैयार। सिंध हुकूमत समुद्री तिजारत को नई रफ्तार देने के मिशन पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मैरीटाइम एक्सपो मुल्क की मईशत और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहर कराची के लिए PIMEC एक बड़ा मौका है जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। समुद्री सन्नत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में मुल्की और बैनुल अक़वामी बहरी कारोबार रहनुमा शरीक हुए। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के जरिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। सिंध हुकूमत समुद्री तजारत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ बहरी रवाबित मजबूत होंगे। वफाक और सूबाई हुकूमत में मामलात तय पा गए। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम दोबारा शुरू हो जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ग्रीन लाइन के साइट ऑफिस का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं ग्रीन लाइन के फेज़ 2 पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से मिलकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अक्सा शाहिद की प्रोजेक्ट मंसूबा कराची के शहरियों के लिए विफाक का तोहफा। ग्रीन लाइन मंसूबे का दूसरा मरहला ताहाल ज़ेरे तामीर है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल के हमरा सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो, MKM के रुकने कौमी असम्बली जावेद हनीफ, अमीनुल हक और राना अंसार समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। ग्रीन लाइन फेज 2 में 3 स्टेशन को तारीखी तर्ज पर तामीर किया जाएगा। मंसूबे के हवाले से सिंध हुकूमत और मेयर कराची से मुकम्मल मुशावरत हो चुकी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने उम्मीद दिलाई कि K4 मंसूबे के लिए भी जल्द फंड्स जारी किए जाएंगे। अगर इसके लिए मज़ीद फंड्स भी दरकार होंगे तो वो भी फराहम किए जा सकते हैं ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो के जो ग्रीन लाइन है वो अपने पूरे सहूलत लोगों को दे सके। चूँकि ये जो नुमाइश से चुंगी से आगे तक इसकी 1.8 किलोमीटर लेंथ है, इसी के अंदर असल में लोगों की डेस्टिनेशन है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि सक्खरता हैदराबाद मोटरवे और कोयटा तक कराची शाहरा को भी एक्सप्रेस वे में तब्दील किया जाएगा। अब चूँकि कराची हैदराबाद मोटरवे पर भी बहुत रश हो चुका है तो हमने इसके लिए भी CPEC के अंदर चाइना की मदद से एक नई फिजिबिलिटी का आगाज़ किया है ताकि हैदराबाद से कराची एक नई 6 लेन मोटरवे की अलाइनमेंट को फाइनलाइज किया जाए। सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए एहसन इकबाल ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप को रुखसत करने का फैसला कर लिया है। दोनों जमातें मिलकर अदम एतमाद की तहरीक ला रही हैं। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। बदफेली, चोरी, तशद्दुद और सुलह 2 साल पुराने राज से पर्दा उठ गया। सिटी 21 मलीर अल-फलाह के मुबैना टॉर्चर सेल की हकीकत सामने ले आया। टॉर्चर सेल की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया मगर हकीकत कुछ और निकली। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है एक शख्स ने मेरे बच्चे के साथ बदफेली की, फिर घर में चोरी करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया, मुलजिम को खुद पकड़ा, इलाका मकीनों ने सबक भी सिखाया। पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ा, सुलह होने, पैसे वापस मिलने पर रिहा कर दिया। पानी भरता था ये शख्स, पानी के कैन लेके हमारे घर आता था। ये पानी के कैन लेके आया, गन पॉइंट पे 2 लड़के अंदर बुलाया इसने और 8.5 लाख का जेवर और कुछ नकदी हमारे घर से लेके चला गया और बाद में मेरे बच्चे को बुला के ब्लैकमेल किया, उसको नशा कराया, इंजेक्शन लगाया, उसको चरस पिलाई और फिली। पार्किंग से मना क्यों किया? बल्दिया इत्तेहाद टाउन में सुपर स्टोर के मुलाजिम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस एहलकार ने
अपने दीगर साथियों को भी मौके पर बुला लिया। तशद्दुद की वीडियो पर SSP किमाड़ी का नोटिस, मुलव्विस तमाम अफराद को क्वार्टर गार्ड कर दिया। सिंध बार काउंसिल इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नताइज का ऐलान रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो की जानिब से किया गया। कराची की 16 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। जी बिल्कुल, सिंध बार काउंसिल इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नताइज का ऐलान रिटर्निंग अफसर एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो की जानिब से किया गया। कारोबारी हवाले से खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 1171 पॉइंट से बढ़कर 1,62,803 पर बंद हुआ। दौरान कारोबार बुलंद तरीन सतह 1,63,935 रिकॉर्ड की गई। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट कामयाबी के सफर पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन कारोबार के दौरान तेजी रही। 100 इंडेक्स 1,171 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,62,803 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,63,935 की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक मार्केट में तेजी की बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से अगले 3 साल के माशी मंसूबे का ऐलान है। GDP की शरह 4.2 से 5.7% तक बढ़ाने का हदफ रखा गया है। जी देखिए, आप मार्केट जो पिछले हफ्ते तकरीबन 7,000 साढ़े 7,000 पॉइंट डाउन हुई थी इस रोल ओवर वीक की वजह से भी। लेकिन जब जैसे ये रोल ओवर वीक ख़त्म होना शुरू हुआ, आपने आफ्टर जुमे के दूसरे सेशन में देखा होगा कि मार्केट ने अपने टॉप लेवल पे हाई किया। इसी वजह से कि जो सेटलमेंट था वो हो गया है पूरा, इस वजह से और इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई है। दूसरा है कि आज गवर्नमेंट ने फिर अपना प्लान इशू किया है GDP का जो 5.7 है, वो अगर सस्टेन करता है तो मार्केट और अच्छी हो जाएगी। और आज भी देखिए, अब मार्केट में बाइंग शुरू हो गई है। इस हफ्ते इंशाल्लाह आपको और तेज़ी नज़र आती रहेगी। माहिरीन का कहना है कि नया मंसूबा सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे और इक्तिसादी सरगर्मियों के इस्तेहकाम की वजह बनेगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मकामी मार्केट में सोना महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,300 रुपए और 10 ग्राम की कीमत में 1,115 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोना $13 महंगा होकर $4,015 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना 1,300 रुपए महंगा होकर 4,23,862 रुपए का हो गया। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां अरूज पर हैं। आर्ट्स काउंसिल में 141 ममालिक की सकाफत के रंग, फ्रांसीसी और बरतानवी सिफारतकारों ने मौसीकी की महफिल सजाई। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का चौथा रोज वर्कशॉप, डायलॉग और फिल्म स्क्रीनिंग के नाम रहा। फ्रांसीसी वर्कशॉप खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गई। गुलकार जहाज़ेब अली शाह बोले, फेस्टिवल से फन को फरोग मिलेगा। स्वीडन की मुसव्वरा ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बनना बाइस फख्र करार दिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां अरूज पर आर्ट्स काउंसिल में 141 ममालिक की सकाफत के रंग, फ्रांसीसी और बरतानवी सिफारतकारों ने मौसीकी की महफिल सजाई। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज वर्कशॉप, डायलॉग, फिल्म स्क्रीनिंग के नाम। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के स्पेशल एथलीट्स ने अज़रबैजान में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। पैरा किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 टाइटल बेल्ट्स अपने नाम कर लिए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के स्पेशल एथलीट्स ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि मेहनत और हौसला किसी को रुकावट नहीं मानता। बाकू में मुनक़िदा पैरा किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 7 पाकिस्तानी एथलीट्स ने मुल्क का नाम रोशन किया। सालिम अमन, तजम्मुल हुसैन, मुबशर शाकिर, फारिस खान, हारिस और अब्दुल समद ने गोल्ड मेडल्स जीते, जबकि हसीब आसिफ और शुजात मुख्तार ने सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुबशर शाकिर ने बताया कि वो 2 साल से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर शाकिर है। माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा इवेंट गुजरा, बहुत अच्छा सफ़र रहा और हम लोग वहाँ पे गए। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमने 2 साल मेहनत करी है, पूरी 2 साल मेहनत करके हमने इसमें नाम पूरा हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने फ़ाइट विन करी है। फ़ाइट विन करने के बाद फिर हम बहुत मज़े का, बहुत अच्छी जगह थी वो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर शहाब का कहना था कि
कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्पेशल बच्चों को न सिर्फ तरबियत देता है बल्कि उन्हें बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत का मौका भी फराहम करता है। ये बच्चे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। ये 7 बच्चे एक नए मुल्क में एक नई जगह पे जाके किक बॉक्सिंग जैसा इवेंट, और ये 78 साल की जो तारीख़ है पाकिस्तान की, उसमें वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की टीम ने अपने झंडे को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह रिप्रेजेंट किया हो। चैम्पियनशिप का ख़ास पहलू बेलेट टाइटल फाइट्स थीं, जिनमें पाकिस्तान के फारिस खान और साले मोहम्मद ने टाइटल बेलेट्स भी जीतीं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।